Hello students, now today we will start the next topic of chapter number 9, ray optics. In the previous video we have discussed up to the total internal reflection. The next topic is optical fiber. So what is an optical fiber? So optical fiber we can say that a device which is used to transmit लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कि एक जगह से लाइट सिग्नल को कहीं दूर लेके जाना है विदाउट लॉस ऑफ मच एनर्जी। मीन्स एनर्जी का लॉस होगा लेकिन कम होगा। मीन्स लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो उसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे काम करता है वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट इज इन ऑप्टिकल फाइबर, हाउ इट वर्क, इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑप्टिकल फाइबर देयर आर टू पार्ट्स, वन इज कोर अनदर इज क्लेडिंग। कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर एक होता है क्लेडिंग। व्हाट इज कोर? कोर आपका होता है इनर पार्ट और क्लेडिंग आपका होता है आउटर पार्ट। सो व्हाट इज कोर? कोर इज अ सिलेंड्रिकल इनर पार्ट। जो कोर है आपका इट लुक लाइक दिस इज अ कोर surrounded by an another part which is known as cladding. ये एक और आपका पार्ट है। So this is your image of optical fiber. Clear? So optical fiber have two parts. So this inner part is core and this outer part is called cladding. Now what is the role of this cladding and what is the role of this core? And the core have higher refractive index as compared to cladding. मीन जो कोर होगा आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लेडिंग से। मीन्स इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, आउटर पार्ट का कम है। दे रिटन द क्लेडिंग हैव लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द कोर। मीन्स कोर के कंपैरेटिवली क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। Now how that optical fiber works? First of all, this is a light signal which came into the optical fiber. Clear? Inner part में आएगा। Now we will draw normal here. There is a condition for the total interreflection if angle of incident is greater than critical angle. So means at that point your angle of incident is greater than critical angle. Clear? And that ray this is denser medium and that is ray because जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट कहीं ना कहीं जा रही है डेंसर से रेयर। बट ड्यू टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल दिस लाइट केम बैक इनटू दिस कोर again here we will draw a normal for this part. This is angle of incident, for that part this is the angle of incident. Again at that point the angle of incident is greater than critical angle and due to this the light again bent or came into the denser medium. तो ये denser medium में light यहाँ पे आ गई। So in that way there is a multiple interreflection and the light signal can be transmitted from one place to another place with the help of optical fiber. So what is optical fiber? Optical fiber is a device which is used to transmit light signal from one place to any far another place. It is work on the principle of total internal reflection. It have a two part, core and cladding. The core is the inner part, cylindrical part and covered by the outer part which is known as cladding. The inner part have the high refractive index as compared to the outer part. So when the light enter in the inner part and tend to go the outer part from denser to rare, but due to the condition of total interreflection the light again come back into the same medium. So in that way the light signal is transmitted for the far off distance without loss of energy. Means energy का loss, much loss of energy. Now what are the various application of that optical fiber? The first application is optical fiber are used to transmit light signal from one place to another place without loss of much energy.
Second point, the optical fiber is also used in the diagnosis of human body which is known as endoscopy. इसको एंडोस्कोप कहते हैं, एंडोस्कोपी. With the help of that, a pipe through the mouth sent into the stomach to capture the image or inner image of the stomach or the throat or the various parts, inner parts, to diagnose which type of disease or which type of problem is present within the body. And optical fiber is also used for the telecommunication. Means tele means जो आपके घर में टेलीविजन के सिग्नल आते हैं. With the help of optical fiber that also transmitted from the one point to another point. Means audio visual signals. The optical fiber also used in the toys. वो आपका क्या है ऑप्टिकल फाइबर जो टॉयज में यूज होता है. आपने देखा होगा एक आपका लाइट फाउंटेन है. मीन्स क्या होता है कि देयर आर स्मॉल स्मॉल पाइप्स, आउटर एंड से जब उसको ऑन करते हैं दैट फाउंटेन लुक लाइक दैट वाटर इज फॉलिंग. मीन्स दिस इज आल्सो यूज इन दिस. सो फ्रॉम बुक no need to read. In optical fiber you have to just write these points. This is your 3 marks question in exam. What is optical fiber, what is its principle, what is working. इसकी वर्किंग है बेटा कि लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, the angle of incident is greater than the critical angle, तो लाइट अगेन रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेल. ये कोर है, ये क्लेडिंग है. कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है किससे, क्लेडिंग से, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. क्लियर. तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर था. अब हम थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के, जिसको हम कहते हैं आइसोसेल्स प्रिज्म के अंदर कि लाइट कैसे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगी उसकी. नेक्स्ट देखते हैं. चलो नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म. कि दिस इज योर प्रिज्म. क्लियर. and prism made up of glass, so its refracted index is equal to 1.5. so this angle is of 90 degree. Clear. And we know that this angle is also 45 and this is also 45. Clear. so we say that a ray of light which is fall perpendicular to the this surface, यहाँ पे वो perpendicular fall कर गई लाइट. क्लियर. तो रेज और भी हमने देखना है कि जब लाइट इस रेयर से डेंसर में गई, इस डेंसर से रेयर में गई, मींस लाइट कहां ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयर. मींस अब लाइट इससे बाहर रिफ्रैक्टेड होगी या इसकी होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वी हैव टू चेक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज दिस इज योर एक नॉर्मल आ गया आपका इंसिडेंट वाला. क्लियर. सो अब ये एंगल हमने देखना है कि दिस इज योर I means angle of incident. Clear. If this I is greater than, अगर ये आपका I किससे ग्रेटर होगा, IC से ग्रेटर होगा, then this light will go through the total internal reflection. so ये I की वैल्यू निकालते हैं पहले कि ये I क्या होगा आपका. first of all this is 45, so this angle is of 90 degree because we draw perpendicular, so this whole angle become 45. Clear. ये 90 है, ये 45 तो ये 45 हो गया. अब हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, दिस नॉर्मल मींस नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस. तो ये आपका जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो अगर ये 45 है तो ये आपका क्या होगा 45, मींस योर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री. क्लियर. नाउ वी हैव टू चेक दिस कि दिस is go through a total inter reflection or not. अब जब हमने देखा था, सबने ध्यान सुनिए बात बेटा, कि जब हम ये कंसेप्ट कर रहे थे कि आपकी लाइट ये वापस आ रही थी, मींस लाइट डेंसर से रेयर आ रही थी. ये तो अपना आया था n जो आया था दैट इज साइन IC आया था. मींस जो हमने अलोंग द सरफेस की बात की थी. क्लियर. फिर हमने इसका रेसिप्रोकल किया था, तो हमारा मान लो ये था, ये 2 था, ये 1 था. तो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है. मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसमें से लाइट जाती है और जिसमें जा रही है, तो जिसमें से जाती है उसके रिस्पेक्ट में जिसमें जा रही है उसका निकालते हैं. अब लाइट कहाँ जा रही है, दूसरे से पहले में जा रही है. तो मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. तो ये आपका आया था यहाँ पे साइन दैट इज IC. क्लियर.
फिर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो दैट इज N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये हमने यहाँ पे किया था। अब जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज 45 डिग्री। क्लियर। अब जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका 45 है, और अब हमने देखना है कि लाइट ये अंदर की तरफ जाएगी या बाहर जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं हम आगे क्या करना है। ध्यान से देखना सभी ने कि व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 1 मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ I 45। सो हियर N21 comes out to be 1 upon that is sin IC, that is IC will take 45 डिग्री मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 45 आ गया। तो अब जब यहाँ पे sin 45 वाले पुट करें तो 1 अपॉन दैट इज sin 45 दैट इज 1 अपॉन √2, तो इट बिकम √2 मींस जो आपका N21 है, क्या आपका N21 मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर। सो दैट कम्स आउट टू बी 1.414। तो एक आपका N ही है। क्लियर। ये था N21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट। एक हमारा N था इस प्रिज्म का। अब किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देर का होता है दैट इज रिस्पेक्टेड विद वैक्यूम और एयर। सो दिस वैल्यू इज ऑफ N12 that is equal to 1.5 means refractive index of medium first with respect second means ये n की वैल्यू है। या सिंपली आपने क्या रखना है, यहां से आपको एक n दिया होगा, इस n को देखना है क्या है और एक और n निकालना है अपने जो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा। दोनों n को आपने कंपेयर करना है। जब हम दोनों n को कंपेयर करते हैं तो हमें यहां से पता लग रहा है कि जो आपका N12 था दैट इज ग्रेटर देन N21 मींस जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इस प्रिज्म का वो ग्रेटर देन आया है जो हम क्रिटिकल एंगल से निकाला है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से निकालते हैं अगर ग्रेटर आता है तो उस केस में आपकी जो लाइट है उसकी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होती है लाइट की? टोटल। सो दिस लाइट इज बेंड इन दैट डायरेक्शन। इसने बाहर जाना था लेकिन इधर बेंड कर गई बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक तो ये मेथड है इसको निकालने का। अब दूसरा मेथड आपको बताना क्या है आपको। अब दूसरे मेथड में आपने क्या करना है, यही कंसेप्ट रहेगा आपका। जस्ट आपने क्या करना है कि इस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स से आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है। फिर उस एंगल को आपने इस 45 के साथ कंपेयर करना है। वो देखते हैं कैसे है कि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ n इज 1.5। क्लियर। सो वी नो दैट n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC होता है आपका। तो 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पे आपका आ गया दैट इज 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू साइन IC। क्लियर। अब यहां पे मैंने पॉइंट हटा के 10 लगा दिया। क्लियर। यहां पे आपका आ गया 2 और यहां पे आपका आ गया 3। क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.66 इज इक्वल टू साइन IC। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, आपको इस साइन की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। अब आपने सिंपल सा पॉइंट ये देखा है कि जो आपका एंगल है I इंसिडेंट एंगल वो 40 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्लियर। अब जब हम साइन के ऊपर बात करते हैं ये वैल्यू आपकी 0.66 है। क्या आपकी वैल्यू 0.66? ठीक है। तो जब हम वैल्यू ढूंढते हैं साइन 30, तो जो साइन 30 होता है बेटा वो करता है हाफ होता है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 हाफ होता है आपका। तो जो साइन 30 हाफ है और ये वैल्यू कितनी है भाई 0.6, और जो साइन 45 है वो आपका होता है 1.414। अब आपको यहां से क्या पता लग रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट तो 45 था। क्लियर। अब यहां से जो आपका IC आएगा, जो साइन की वैल्यू होगी मींस जो IC होगा वो हम कह सकते हैं कि दैट इज बिटवीन
30 to 45 मीन्स 30 से ज़्यादा है और 45 से कम है। 45 तो है ही नहीं है, क्लियर। 30 से ज़्यादा है और 45 से कम है, मीन्स जो आपका क्रिटिकल एंगल है इस मीडियम के लिए वो 30 से बड़ा है और 45 से छोटा है, लेकिन जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 45 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आई है वो ग्रेटर देन किससे, आई सी से। अब जब इस वैल्यू को हम देखते हैं बेटा, यहां से जो इस एग्जैक्ट अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो यहां से जो आई सी आता है वो होता है 41 पॉइंट समथिंग। जो क्रिटिकल एंगल है इस मीडियम के लिए वो 41.8 है, और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 45। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे ग्रेटर है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। इसका मतलब वो कंडीशन किसकी फुलफिल कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्लियर। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने पिछले वाले पार्ट में एन क्यों निकाला, क्योंकि बेटा एन निकालना आसान है और क्रिटिकल एंगल आपको निकालना मुश्किल, लेकिन अगर आप पॉइंटों में इसको समझ जाओगे तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ क्या किया हमने, दोनों तरीके बताता हूँ पहले। अब वी नो दैट आर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45, अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है 45 है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। तो मैं इस 45 एंगल के लिए एन निकालूंगा। क्लियर। हमें पता है क्या कि जो एन होता है दैट इज 1/sin आई। अब एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और जो साइन आई है वो आपका वो है 45। क्लियर। तो यहां से जो एन आ गया आपका वो आ गया √2 दैट इज 1.414। क्लियर। ये तो एन है इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए और ये एन है इस मीडियम का, दोनों को हमने कंपेयर करना है। क्लियर। तो अगर एन आपका मीडियम का ग्रेटर देन है एन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इस केस में आपकी होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपका एन मीडियम के एन से बड़ा है, क्लियर। अब ये अगर हम यहां से देखते हैं बेटा कि ये आपका डेंसर हो गया और ये हो गया रेयर, मीन्स लाइट डेंसर से रेयर जा रही है। क्लियर। लेकिन अगर हम इस आई के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया तो वो रेयर से डेंसर केस बन जाएगा और जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन को फुलफिल नहीं करता। तो एक तो ये मेथड है यहां से एन निकालना। दूसरा मैंने आपको पहले समझाया क्या कि आप क्या करोगे, जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे आपने साइन की एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है, उस क्रिटिकल एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट से कंपेयर कर लेना। तो अगर यहाँ पे एक और रे आएगी वो भी आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था कि लाइट आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो आपको पता होगा आपने उस मीडियम के रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के हिसाब से, अब आपको बताता हूं हमने रेसिप्रोकल क्यों किया। तो जो पहले केस था उसमें लाइट डेंसर से रेयर जा रही थी, लेकिन इस केस में लाइट बेटा रेयर से डेंसर आ रही है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया वहां पे। पहले हमने रेसिप्रोकल नहीं किया था ना, तो वो आपकी वैल्यू आई थी, मान लो आपका एन इज इक्वल टू साइन आई सी आया था। तो ये जो कंडीशन थी ये आपकी थी डेंसर टू रेयर, बट जो हम यहाँ पे केस फॉलो कर रहे हैं वो हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर, तो यहाँ पे इसका करना पड़ेगा अपने को उल्टा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। क्लियर। रिफ्लेक्शन, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और हम क्वेश्चन इसके आएंगे सैंपल पर जब हम करेंगे तब इसको और डिटेल में करेंगे। लेकिन अब आपने कंडीशन याद रखनी है, दो तरीके यहाँ पे, या तो एन निकाल लो या फिर आप क्रिटिकल एंगल निकाल के एंगल ऑफ इंसिडेंट को कंपेयर करो। सो दिस इज योर टॉपिक। इसके बाद हमारा शुरू होगा टॉपिक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो उसको देखते हैं व्हाट आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब नेक्स्ट आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक्चुअली में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, these are the surfaces which separate the two medium, means rare और denser। क्लियर। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। सो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपका। क्लियर। तो ये अब आप इस फेस को देख रहे हो, तो ये है आपका कनकेव, मीन्स दिस इज अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मीन्स ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका जो एक पार्ट होगा, वन पार्ट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। किसका पार्ट है कि स्फीयर का पार्ट है, मीन्स जो ये वाला पार्ट है स्फीयर का पार्ट है। क्लियर। जैसे हमने लेंस की बात की थी, वही हम सॉरी मिरर की बात की थी, लेकिन अब इस केस के अंदर जो आपके हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट है, मीन्स ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम, मीन्स यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का n2 है। अब इसका जो ये पार्ट है
ये कनकेव है। और दूसरा सिमिलरली अगर हम दूसरा बनाते हैं आपका, ये भी आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो कि दिस इज नोन एज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब व्हाट आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है आपके? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस is a refracting medium whose covered surface is a part of sphere। मीन्स आपके ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिनके जो कवर्ड पार्ट है। अब ये तो देखो, ये आपका कवर्ड पार्ट है, ये आपका कर्व्ड पार्ट है, लेकिन ये आपका कर्व्ड पार्ट नहीं है। क्लियर? मीन्स जिसका कवर्ड पार्ट किसी भी स्फीयर का एक पार्ट है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस। अब ये दो तरह के कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस। अब कनकेव और कन्वेक्स मैंने आपको सामने बना दिया कि जिसका जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है वो कनकेव की तरह है, वो कनकेव हो गया। जिसका रिफ्रैक्टिंग पार्ट आपका किसकी तरह है? कन्वेक्स की तरह है, वो आपका कन्वेक्स हो गया। सो व्हाट आर हिज एग्जैक्ट डेफिनेशन? अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose which is a concave outward रेयर मीडियम, कि जो रेयर मीडियम की तरह कनकेव, मतलब ये आपका रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब जो रेयर मीडियम की तरफ किसकी तरह किसकी तरह शेप है इसकी शेप है कनकेव की तरह। और इस रेयर मीडियम की तरह इसकी किसकी शेप है? कन्वेक्स की। तो ये आपके दो तरह के मीडियम है, कन्वेक्स एंड कनकेव। इनके रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है। क्लियर? पेपर में कई बार पूछा जा सकता है इसका, लेकिन फॉर्मूला का बहुत यूज है। क्लियर? और इनका आगे एप्लीकेशन भी है लेंसेज के अंदर। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मीन्स इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोनों की हमने करनी है, लेकिन आपको एक एक हम एग्जांपल देंगे दोनों का। क्लियर? दोनों को में से एक एक को आपको समझा देंगे। दूसरा पार्ट है फॉर्मूला वही सेम होगा, बट जस्ट थोड़ा चेंज होगा, उसको हमने देखना है। तो इसको देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपकी कुछ टर्म्स होंगी, कुछ साइन कन्वेंशंस होंगी। उन टर्म्स को, उन साइन कन्वेंशन को ड्यूरिंग दिस डेरिवेशन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं आपका कन्वेक्स, कि आपका कोई कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। एक्चुअली दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी लाइन का प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये आपका है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो दिस इज द पोल, ये आपका है पोल ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। व्हाट इज पोल? द मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? अगेन इट इज अ सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। Again, radius of curvature, it is the radius of a hollow sphere from which spherical refracting surface forms a part. Aperture, it is a part of a refracting surface which is exposed to incident light. तो अब हम कह देते हैं कि ये पोल है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो अगर हम कह देते हैं कि ये पोल है, अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अब ये देखो ये आपका कौन सा है? दिस इज कन्वेक्स, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कहीं ना कहीं। क्लियर? तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ओ। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट चलेगी। क्लियर? इसने यहाँ पे हिट किया लाइट ने, तो ये आपका मीडियम N1 है, ये मीडियम आपका N2 है, और ये फिर से आ गया आपका N1। क्लियर? तो अब लाइट कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर। कहाँ जा रही है लाइट? रेयर से डेंसर। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इफ वी ड्रॉ अ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज अ नॉर्मल, सो दिस एंगल इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। और पता है कि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो किसको मीट करता है? वो मीट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को। क्लियर? अब लाइट कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर, तो क्या करेगी? बेंड टूवर्ड नॉर्मल। तो इस लाइट ने आपकी ने ऐसे जाना था सीधा, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। वो कहाँ बेंड कर गई? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो ये लाइट आपकी यहाँ पे है। क्लियर?
और यहां पे आपकी बन गई इसकी इमेज। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा डायग्राम है। अब यहाँ पे हमने कुछ एंगल लेने हैं, उन एंगल को बताना है कि एंगल क्या है वो, उसके बाद आपका डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ से रे चली, यहाँ पे हिट के यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर को रेचर बन गया। अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, फिर रेयर से डेंसर तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे इसने मीट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी वहाँ पे आपकी बन जाएगी इमेज। तो अब कुछ एंगल्स आएंगे, उन एंगल्स के बारे में देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कह देंगे हम, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट रे, इमेज रे एट द नॉर्मल with the principal axis. So this angle is alpha, means angle made by the, we can say that कि यहाँ से जो ये इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस का, ये बीटा है आपका। और ये नॉर्मल जो एंगल बनाया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो दिस इज योर गामा। क्लियर? यहां से हमने इस पॉइंट को ए कह दिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया एंड दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो हमें सबको पता है द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोल, सो दिस इज योर यू एंड दिस इज योर वी एंड दिस pole to the, this is R. Clear? So all the distance are measured from the pole. The distance toward the left hand side taken as negative, on the right hand side taken as positive. Clear? So अब हमने सब कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। You have to derive a formula for the refracting surface. तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, एक अल्फा वाली ट्रायंगल लेनी है, एक बीटा वाली ट्रायंगल लेनी है और एक गामा वाली ट्रायंगल लेनी है। तो ये ट्रायंगल कौन सी है वो देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए और ये सी, इस ट्रायंगल ओ, ये ट्रायंगल आपकी दिस, ये वाली ट्रायंगल। क्लियर? अब इस ओ ए सी के अंदर हम लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मीन्स सम ऑफ अल्फा प्लस गामा, सम ऑफ अल्फा प्लस जो गामा होगा आपका दैट इज इक्वल टू आई। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लगा दिया इन ट्रायंगल AOC, तो इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये बना आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। The sum of two interior angle is equal to the opposite exterior angle. क्लियर? तो एक ट्रायंगल हमने बोल ली। अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम, क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो हमने लेनी है वो ट्रायंगल आपकी होगी जो, अब आपको पता है कि ये एंगल आई था, ये आपका नॉर्मल था, तो जो ये एंगल होगा आपका, दिस एंगल इज नोन एज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने ट्रायंगल लेनी है ACI, इन triangle ACI या AIC. So now R plus beta is equal to gamma. So gamma is equal to R plus beta. Clear? तो ये आपके दो आ गई, ये this is your first equation and this is your second equation. So now we have to find the value of alpha, beta and gamma, and we will put all these value in this and we will rearrange all these things. अब अल्फा बीटा गामा कहाँ से निकलेगा उसको हमने देखना है कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। वो कहाँ से निकलेगी आपकी, इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल OAN, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा थीटा इज इक्वल टू L/R। ये थीटा है, ये L है और ये हो गया आपका R, PN। क्लियर? तो जो आपका अल्फा आया, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज AN डिवाइड बाय ON। सिमिलरली इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, अब हम बीटा वाली का ट्रायंगल लेते हैं तो इसका नाम है ANI, ANI। इन दिस ट्रायंगल
दिस इज बीटा, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द रेडियस। सो यहां पे आपका आ गया बीटा इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन आई। क्लियर। एंड इन ट्रायंगल अब आपने लेनी है कौन सी, गामा वाली ट्रायंगल, तो इसका नाम है ए एन सी, ट्रायंगल ए एन सी। तो इसके अंदर जो आपका गामा होगा दैट इज ए एन डिवाइड बाई एन सी। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा और गामा की। आफ्टर दैट वी विल पुट दिस अल्फा बीटा गामा वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको फिर से हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। उसको देखते हैं कैसे रीअरेंज करना है। सो नाउ विल पुट, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं मैं यहाँ से। इस आर को उठा के, इस बीटा को उठा के मैं उधर ले गया, तो यहां से जो आपका आर आया, दिस आर कैन बी रिटन एज गामा माइनस बीटा। क्लियर। सो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन दिस इक्वेशन। सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सो इन प्लेस ऑफ अल्फा विल पुट ए एन अपॉन में ओ एन। यहां पे आपका आ गया ए एन अपॉन में ओ एन। क्लियर। इन प्लेस ऑफ गामा वी विल पुट ए एन अपॉन में एन सी, ए एन अपॉन में एन सी। क्लियर। in place of gamma here we will put, in this equation we will put r is equal to, गामा की जगह आ जाएगा ए एन अपॉन में एन सी, ए एन अपॉन में एन सी माइनस इन प्लेस ऑफ बीटा ए एन अपॉन में एन। तो अब हम यहां तक आगे आर हमने निकाल लिया, आई हमने निकाल लिया बाय पुटिंग द ऑल दीज वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहां पे हम एक कंसेप्ट लगाएंगे, जो आपकी लाइट है वो कहां जा रही है, वो जा रही है रेयर टू डेंसर। तो अब यहां पे जो आपका होगा वो होगा रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ, अब लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, जिससे लाइट जाती है और जिसमें जा रही है, तो जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, जहां से लाइट आ रही है, तो यहां पे आएगा रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। अगर यहां n1 था, ये n2 था, तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो दिस वी नो दैट दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्लियर। स्नेल लॉ से और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब जो आपका n21 है, दिस कैन बी रिटन एज n2 अपॉन में n1। अब हमने कर देना इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां बन जाएगा आपका n1 साइन आई is equal to n2 sin r। क्लियर। फिर हम कह देते हैं कि these angle are quite small, so this sign can be neglected। इस साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस एंगल बहुत छोटे हैं, तो हम इसको नेग्लेक्ट करने के बाद आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं थोड़ा। सो नाउ वी हैव टू पुट, तो यहां पे आपका आ गया n1i is equal to n2r। So in this equation you have to put the value of I and R from here। यहाँ से I की वैल्यू और R की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो अब इस I की वैल्यू और R की वैल्यू को हम पुट करते हैं। क्लियर। सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इसको ऊपर से मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो व्हाट आर द वैल्यूज। सो n1 एज इट इज आ गया आपका। In place of I we can put an upon में on प्लस an upon में nc इज इक्वल टू, वहां पे आपका क्या था, n2 था, तो n2 के साथ आपका क्या r है, तो r की जगह हम रख देंगे यहाँ पे वैल्यू an अपॉन में nc माइनस an अपॉन में ni। क्लियर। अब हम, आप देख रहे हो यहाँ पे भी an, यहाँ पे भी an, यहाँ पे भी an, यहाँ पे भी an, तो दोनों साइड से an को कॉमन लेके आपने हटा देना है, मीन्स यू हैव टू कट द an फ्रॉम बोथ साइड। सो अब आपका यहाँ पे आ गया n1 अपॉन में 1 अपॉन on प्लस 1 अपॉन में nc इज इक्वल टू n2 1 अपॉन nc
-1/n। उसके बाद अब हमने यहाँ पे पॉइंट देखना है, हम कह देते हैं कि दिस P एंड दिस N पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, क्योंकि N का तो कोई रोल ही नहीं, P का ही रोल है सारा, तो इन प्लेस ऑफ N वी कैन राइट P। जहां जहां पे आपको N दिखाई दे रहा है वहां वहां पे हमने P लिख देना, P P P एंड दिस इज P। So after this you have to put this value OP. So OP is the object distance. On which side? It is on the left hand side. So this comes out to be a minus. So यहाँ पे आपका आ जाएगा N1 1 में माइनस के U प्लस PC this is pole to curvature, this is radius curvature on the right hand side of the pole, so this is taken as positive. So this is 1/r clear is equal to again here N2 1/r minus pi image distance on the right hand side, so this is 1/v। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब इसको हमने अंदर लेके जाना है, ठीक है। जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा N1 में माइनस के U प्लस N1 में R इज इक्वल टू N2 में R माइनस N2 में V। अब हमने क्या करना है, दिस R टर्म को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, क्लियर, और V वाली टर्म को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो हमने क्या करना है यहां से आगे, अब इसको उठा के इधर ले आओ और इस R वाले टर्म को उठा के उधर ले आओ, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा N1 में माइनस के U प्लस N2 में V इज इक्वल टू, उधर चले गए तो यहां पे आ गया N2 में here is N2 में R माइनस N1 में R, क्लियर। अब यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद इनको थोड़ा रीअरेंज करना है या इसको लिखना है तो लिख सकते हो आप। यहाँ पे आपका आ गया माइनस के N में U प्लस N2 में V इज इक्वल टू, नीचे R का एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ गया N2 माइनस N1। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये आपके कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपका फॉर्मूला आ गया, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला था फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब नेक्स्ट फिर कन्वेक्स को देखना है हमने, बट इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द डेंसर मीडियम। क्या है कंसेप्ट, देखते हैं चलो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, ये मैंने आपका बना दिया आप कहोगे सर ये कन्वेक्स है कनकेव है, बेटा देखो ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम को कौन सा फेस कर रहा है, क्लियर। तो ये कौन सा फेस होता है आपका आउटर वाला, तो ये आपका है कन्वेक्स। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है डेंसर मीडियम में, क्लियर। सो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये पोल है इसका, दिस इज द पोल, क्लियर। अगर ये पोल है तो इधर कहीं ना कहीं इसका सेंटर कर्वेचर होगा क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमने ध्यान से देखना है, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया कि ये आपका है ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट चली बेटा ऐसे, क्लियर। ये रे ऑफ लाइट आपकी चली, तो आपको पता है कि यहाँ से अब हम नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे, क्लियर, क्योंकि इसका सेंटर कर्वेचर इधर है तो नॉर्मल आपका इस साइड आएगा। तो जब इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, व्हेन वी ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस, तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भैया ऐसे। सो दिस इज योर नॉर्मल, क्लियर। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अब लाइट जा रही है कहाँ से, डेंसर से रेयर, तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था आपका नॉर्मल, तो जो लाइट है वो नॉर्मल से कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
जिसको हमने n नाम दे दिया, इसका नाम है a, ये n है और ये है a। क्लियर। अब आपको पता है कि जो ये एंगल होगा, ये दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आपका। अब वही बात, ये एंगल आपका क्या है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहले ट्रायंगल ले लिया आपने, यहाँ पे C आएगा तो ट्रायंगल ले ली OAC। तो OAC के अंदर I प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAC के अंदर आपका होगा I प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। यहां से आगे देखो, ये अल्फा है, ये I है और ये गामा है। अब दूसरी ट्रायंगल ले ली हमने, ये वाली CAI, इन ट्रायंगल CAI यहां पे आपका जो आएगा दैट इज गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर। तो यह आर आपका आ गया गामा प्लस बीटा, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस आई की वैल्यू निकालूंगा। तो ये जो आई होगा ये आपका बन जाएगा गामा माइनस अल्फा। क्लियर। और फिर से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये क्या होगा आपका, ये आर है, ये आपका यू है और ये आपका वी है। एक कंसेप्ट आएगा एट द एंड, वो आपने समझना है बस, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस है, कनकेव सरफेस है, एट द एंड आपको बताऊंगा कि ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। पहले हम ड्राइव कर लेते हैं क्या है, देखो सारे डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस ट्रायंगल से मैंने AON से मैंने निकालना है अल्फा। तो जो आपका अल्फा होगा वो होगा आपका AN डिवाइड बाई ON। सिमिलरली जो बीटा होगा आपका, ये बीटा है, तो बीटा आपका होगा AN अपॉन में NI, AN अपॉन में NI। सिमिलरली जो गामा होगा आपका, यहां से निकलेगा गामा AN अपॉन में CN, AN अपॉन में CN। क्लियर। अब फिर से हम देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू अल्फा बीटा एंड गामा in equation 1 and 2. So now we will put first, we will find the value of I. So here I comes out to be, what is gamma? Gamma is AN upon में NC, AN upon में CN. Next minus, what is alpha? AN upon में ON. So this is the value of I. Similarly R, this you R, we will put beta. So beta is equal to AN upon में NI प्लस गामा, गामा इज AN अपॉन में CN. So this we have find the value of I and R. Again we will use the concept law of refraction, sin I by sin R. अब लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, मीन्स ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। तो अब हमने इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया। सो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, this your first, this your second. So refractive index of medium first with respect second. So means N12 means refractive index of medium first with respect second, क्योंकि लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। तो यहाँ पे आपका आएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो ये साइन आई बाय साइन आर आ गया। अब जो N12 है इसको हम लिख सकते हैं N1 अपॉन में N2। क्लियर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, N2 साइन आई इज इक्वल टू N1 साइन आर। क्लियर। सो आफ्टर दैट अगेन दिस एंगल आर वेरी स्मॉल, सो वी विल रिमूव साइन, सो इट बिकम N2 I is equal to N1 R. So now in this equation we have to put the value of I and R. So what is the value of I and R? We will put it and see what is the result. So now here I am putting the value of these two value in this. So N2 as it is remain same. So what is I? So in place of I we will put here AN अपॉन में CN माइनस AN अपॉन में ON इज इक्वल टू N1 R. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R? R है आपका AN अपॉन में NI
an अपॉन में ni प्लस an अपॉन में cn. Clear? So now again an from the both side will take common and cancel. So इसको हमने क्या कर दिया, यहां से कैंसिल कर दिया. क्लियर? अब हमने क्या देखना है फिर से कि the point n and p, these are very close to each other. So in place of p we can write n, or in place of n we can write p. So because p have a role in this whole formula, so we'll put p in place of n. So यहाँ पे p आ गया आपका, यहाँ पे p आ गया, यहाँ पे आपका p आ गया, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, p आ गया. क्लियर? cp जो भी pc आप देख सकते हो, ऊपर आ गया 1 और a1. अब हमने वैल्यू पुट करनी है सबकी इसके अंदर. So n2 remains same. So in place of PC, this is PC, pole to curvature, this is radius of curvature. On the left hand side है तो किसका होगा, माइनस का. So this is -1 upon minus OP is the object distance on the left hand side. तो यहाँ पे क्या माइनस, बट ये भी OP भी किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, so 1 upon U is equal to n1. What is pi? Pi is the image distance. So this comes out to be positive v because on the right hand side plus pc. अब जो pc है वो भी क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो किसका होगा, माइनस का होगा. तो here comes out to be -1 upon r. So यहां तक हम पहुंच गए. अब इसको हमने रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने के बाद हम देखते हैं क्या आपका रिजल्ट आता है. क्लियर? तो अब इसको आप अंदर ले जाओ, तो यहां पे आएगा -n2 डिवाइड बाय r प्लस n2 डिवाइड बाय u इक्वल टू n1 डिवाइड बाय v माइनस n1 डिवाइड बाय r. क्लियर? अब हमने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है. ठीक है, तो इस टर्म को उठा कर इधर ले आओ. क्लियर? n1 वाली टर्म आपकी ये माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी, और इस u को उठा के उधर ले जाओ. तो यहाँ पे आपका क्या, माइनस के n2 डिवाइड बाय r प्लस के n1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय v, उधर जाके चला गया तो माइनस के n2 डिवाइड बाय u. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम. अब यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के n2 डिवाइड बाय u, इसको मैंने आगे लिख लिया, प्लस n1 अपॉन में v इज इक्वल टू, ये बेटा u की टर्म हमेशा आगे लिखनी है और v की हमेशा पीछे लिखनी है. अब ये टर्म उधर जाएगी तो नीचे r आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा n1 माइनस n2. तो ये आपका आ गया कि जब आपकी लाइट किसी भी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के डेंसर से रेयर में जाएगी. क्लियर? अब जो इससे पहला फॉर्मूला था अपना वो था रेयर टू डेंसर. अब ये लाइट कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर. अब रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर में क्या डिफरेंस है वो हमने नोट करना है. ठीक है? अब जब हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे आपका आएगा माइनस के n1 अपॉन में u प्लस n2 अपॉन में v इज इक्वल टू. क्लियर? इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा n2 माइनस n1 अपॉन में r, n2 माइनस n1 अपॉन में r. तो ये आपका केस था, ये आपका केस था रेयर टू डेंसर, और ये आपका केस है डेंसर टू रेयर. अब दोनों कंसेप्ट सभी ने ध्यान से समझना है कि मैंने क्या बोलना है, बाकी उसको ध्यान सुनना सभी ने. सुनो ध्यान से. क्या है कि जब भी आपकी लाइट, चाहे वो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, चाहे वो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जब भी वो डेंसर से रेयर जाएगी, कहां जाएगी, डेंसर से रेयर, मींस चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, डेंसर से रेयर जाएगी लाइट, तब आपका जो फॉर्मूला ये आएगा. चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, जब भी वो रेयर से डेंसर में जाएगी तब आपका फॉर्मूला ये आएगा. मींस आपने रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर के फॉर्मूला को ही याद रखना है. ये नहीं देखना कि कन्वेक्स है या क्या है कनकेव. तो ये मैंने आपके कन्वेक्स के दो केस को डिस्कस किया है. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट केस है वो आपका है कनकेव का. कनकेव के केस को समझना है. अगर वहां पे कहीं पे भी कोई डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आपने बेटा मेरे को मैसेज करना है कि सर वो समझ नहीं आया, तो उसकी भी वीडियो आपके लिए हम बना देंगे नेक्स्ट. लेकिन एक बार उसको ट्राई करना है. तो ये आज के लिए इतना था आपका. तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक अपना कंप्लीट करो.
कहीं पे कोई डाउट आता है तो उसको पूछो, मैसेज करना है। वीडियो पूरी देखनी है, देखने के बाद एट द एंड कमेंट करना है। अब जो वीडियो पूरी देखेगा उसको ही पता है कि सर ने बोला कमेंट करना है, इसका मतलब जो जिसके कमेंट नहीं आते इसका मतलब वो वीडियो को पूरा नहीं देखता। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक that is related to the prism. Thank you.